Let's improve English. Why should I watch this video? If you're wondering, then let me explain this to you in simple lines why you should watch this video instead of giving a long introduction, probably boring. You should watch this video because you'll learn useful phrases and words in daily life sentences. You'll practice well by trying to translate the sentences that I mention in Hindi. You'll learn how to say certain things in multiple ways. You'll have a great listening practice as you watch the video. बहुत घिनौना आदमी है वो, इसे कह सकते हैं He is a despicable man or he is a contemptible man. अब आप देखो, जैसे सामने से जवाब आया, हाँ सही में, एकदम सही कहा तुमने, सही में यार, सही में यही बात है. You can say that again. You can say that again. This is the line that I want to teach you how to use. This is actually an idiom. This seems like a simple sentence to you, but it isn't. It is an idiom. If you say, you can say that again, it means you agree with something that somebody has just said. Somebody said something, you also have the same opinion, you also think that what he said is right. You can just say, you can say that again. For example, somebody said, it's very hot today. You can say, you can say that again. You can say that again. It's extremely cold. You can say that again. Amit is super talented. You can say that again. Getting successful in life needs a lot of efforts. You can say that again. It is not easy to please him. You can say that again. So friends, जब किसी ने कुछ कहा और आप उसकी बात से अग्री करते हैं कि हाँ सही में यार ऐसा ही है, इंग्लिश में आप कह सकते हैं You can say that again. क्या तुम्हें मेरा यहाँ आना नहीं पसंद? मुझे तुम्हारा चिल्लाना नहीं पसंद. जब हमें कुछ ऐसा कहना होता है कि हमें किसी का कुछ करना नहीं पसंद, तो उसे कैसे कहते हैं? Do you not like my coming here? Do you not like my coming here? Let me tell you something else. Spoken English में ये बहुत कॉमन है कि my की जगह पर me बोल देते हैं. Do you not like me coming here? Do you not like me coming here? But correct grammar कहती है कि यहाँ पर my होना चाहिए, possessive adjective होना चाहिए. Do you not like my coming here? Similarly, I don't like your shouting. I don't like your shouting. मुझे तुम्हारा चिल्लाना नहीं पसंद. रोज लेट पहुंचने की वजह से मेरी नौकरी चली गई. I got sacked for reaching office late every day. I got sacked. Friends, sack का मतलब किसी को नौकरी से निकाल देना. If you sack someone, you dismiss that person from his job. You fire that person. You dismiss. You sack him. I got sacked. Got sacked passive voice है. Get के बाद verb की third form. I got sacked for reaching office late every day. याद रखना है कि इनफॉर्मल तरीका है इस बात को कहने का. मैं नौकरी नहीं खोना चाहता. I don't want to get sacked. I don't want to get sacked. So friends, यहाँ पर sack की जगह पे आप ऐसे कह सकते हैं I don't want to be fired. I don't want to get fired. और I don't want to get dismissed from my job. इस तरह से sacked एक सिनोनिम है उस चीज का. नौकरी से किसी को निकाल देना, उसे sack कर देना. So friends, you should always remember that sack also means a kind of bag in which you can put something. हम हिंदी में जिसे बोरी कहते हैं उसे इंग्लिश में sack कहते हैं. तो sack का मतलब वो भी होता है. उसके आने से घर में तहलका मच गया है, इसे कह सकते हैं His arrival has caused a stir in the house. His arrival, उसका जो arrival है उसने stir को cause कर दिया है इस घर में. जी हाँ फ्रेंड्स, stir का मतलब तहलका, बहुत ज़्यादा चहल पहल, शोरगुल, अफरा तफरी. वैसे stir का मतलब चम्मच घुमाना होता है. जैसे अगर आप किसी बर्तन में stir कर रहे हो, मतलब जो भी उसमें है उसको आप हिला रहे हो मिक्स करने के लिए कुछ, उसे भी stir करना बोलते हैं. लेकिन stir एज अ नाउन इसका मतलब होता है तहलका, अफरा तफरी, कमोशन. कमोशन का आप यूज कर सकते हैं. uproar कह सकते हैं. His arrival has caused an uproar. या फिर turmoil, turmoil भी कह सकते हैं. इन सब का मतलब है अफरा तफरी, तहलका, यानी कि सबके मन में बहुत आशंका और तहलका. You get what I mean. Commotion, uproar, turmoil, stir. Another example. यहाँ पे काफी हलचल मच गई है. A big commotion has been caused here. A big commotion has been caused here. क्या तुम मेरे सर पे खड़े रहना बंद नहीं करोगे? जैसे कि कोई बिल्कुल आपके नजदीक है और आपकी हर एक मूवमेंट को देख रहा है आप क्या कर रहे हो, यानी एकदम आपके नजदीक है.
तो उसके लिए गुस्से में हम कहते हैं सर पे खड़े रहोगे क्या? विल यू नॉट स्टॉप लिविंग इन माई पॉकेट? विल यू नॉट स्टॉप लिविंग इन माई पॉकेट? यू लिव इन समवन्स पॉकेट, इट मीन्स यू अनॉय देम बाय स्टेइंग टू क्लोज टू देम। इसकी जगह पर आप ऑफकोर्स दूसरे तरीके भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि नोज अराउंड, प्राइंग और स्क्रूटनाइजिंग। विल यू नॉट स्टॉप नोजिंग अराउंड? विल यू नॉट स्टॉप प्राइंग? विल यू नॉट स्टॉप स्क्रूटनाइजिंग? इन सब का मतलब है बहुत ज्यादा नजर रखना किसी के ऊपर कि कोई क्या कर रहा है, उसको देखते रहना वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सर पे खड़े रहना जैसे हिंदी में कहते हैं। नेता तो उसकी जेब में रहते हैं, तो इस तरह से भी हम इस इडियम का यूज करते हैं, लिव इन समवन्स पॉकेट। इस तरह से भी हम इस इडियम का यूज करते हैं, लीडर्स लिव इन हिज पॉकेट। लीडर्स लिव इन हिज पॉकेट, इट मीन्स दे आर कंट्रोल्ड बाय हिम, दे लिसन टू हिम, दे लिव इन हिज पॉकेट। कितना फनी सा लगता है ना वैसे, लिविंग इन समवन्स पॉकेट। यू शुड नो व्हाट दिस मीन्स। तुमने इस वक्त कितनी पी रखी है? इंग्लिश में कहेंगे हाउ टोन्ड आर यू राइट नाउ, हाउ बेक्ड आर यू राइट नाउ। और अगेन ये इनफॉर्मल वर्ड्स है, इनफॉर्मल तरीका है, लेकिन इनको मैंने मूवीज में सुना था। ऐसे कहते हैं हाउ स्टोन्ड आर यू राइट नाउ, हाउ बेक्ड आर यू राइट नाउ। बेक्ड होना या स्टोन्ड होना मतलब नशे में होना। ऑफ कोर्स आप इसकी जगह पर इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। ड्रंक, हाउ ड्रंक आर यू। इंटॉक्सिकेटेड, इसका भी मतलब होता है नशे में होना। या इनिब्रिएटेड, हाउ इनिब्रिएटेड आर यू राइट नाउ। इनिब्रिएटेड, इंटॉक्सिकेटेड, ड्रंक, स्टोन्ड, बेक्ड, इन सभी को आप यूज कर सकते हैं। इन सब का मतलब है नशे में होना। इसी जैसा दूसरा सेंटेंस आप देखिए, जब नशा उतर जाए तब मुझसे बात करना। टॉक टू मी व्हेन यू आर सोबर। टॉक टू मी व्हेन यू आर सोबर। सोबर होने का मतलब होता है होश में होना, नशे में ना होना। टॉक टू मी व्हेन यू आर सोबर। मुझे उससे अपना हिसाब बराबर करना है। इंग्लिश में कह सकते हैं I need to get even with him. I need to get even with him. Get even with someone मतलब उसने आपके साथ कुछ बुरा किया था, अब आप कर रहे हो, so you get even with that person. Friends, पेशेंस के साथ आपको वीडियोस को देखना है। इस वीडियो को पेशेंस के साथ देखना है। ये नहीं सोच रहा कि फटाफट वीडियो खत्म हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, फटाफट सेंटेंस बताए, क्यों फालतू बकवास करता है वगैरह वगैरह। फ्रेंड्स, ये एंटरटेनमेंट नहीं, एजुकेशन है। मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले भी मैंने बताया है। तो फ्रेंड्स, पेशेंस के साथ देखना है। चीजों को सीखने में, ग्रैब करने में वक्त लगता है। आज की इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में लोग पेशेंस रखना भूल गए हैं। आपके ऑर्डर करते ही खाना आपके घर पे आ सकता है, आपके ऑर्डर करते ही कपड़े घर पर आ सकते हैं, आप तुरंत अपना बिजली का बिल घर बैठे भर सकते हैं, लेकिन तुरंत कुछ भी सीख नहीं सकते। सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है, पेशेंस की जरूरत पड़ती है। I need to settle an old score with him. I need to settle an old score with him. तो इस इडियम का भी आप यूज कर सकते हैं, settle an old score with someone. पुराना हिसाब किताब चुकता करना किसी से। हाँ, अब हुआ हिसाब बराबर। अब ऐसा करने के बाद आप कह रहे हो हाँ अब हुआ हिसाब बराबर। Yes, now we are even. Now we are even. तुम हर चीज को लेके इतनी चिंता क्यों करने लगते हो? Why do you get so uptight about everything? Another impressive word, uptight. Worried की जगह uptight बोल दो, ज्यादा बेटर साउंड करोगे। Why do you get so worried भी कह सकते हैं, worried। या फिर आप anxious भी कह सकते हैं, Why do you get so anxious। या फिर uneasy, Why do you get so uneasy। Why do you get so tense। जी हाँ फ्रेंड्स, इंग्लिश के ग्रामर वाला टेंस नहीं, एक टेंस का मतलब चिंता में होना भी होता है। Why are you so tense। Why do you get so tense। uneasy, anxious, worried और uptight। तो फ्रेंड्स, आपको बार बार इन वर्ड्स को बोलना है। हो सकता है ज्यादातर वर्ड्स आपको पहले से पता होते हैं, लेकिन पता होने का क्या फायदा जब राइट टाइम पर उनका आप यूज ना कर सको। तो आपको ज्यादा से ज्यादा बार मैं वो वर्ड्स सुनाता रहता हूँ ताकि आपको वो याद रहें, आपके एक्टिव वोकैबुलरी में मूव करें और आप उनको बोलते वक्त यूज कर सकें। तो इनको आपको बार बार सुनना है और बोलना है। आप वीडियो को रिपीट करके भी देखेंगे तो इससे आपको और फायदा होगा। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरे वीडियो को 6 बार देखो या 8 बार, व्यू तो मुझे एक ही मिलेगा, लेकिन फ्रेंड्स आपको फायदा हो सकता है। आपको ऐसा करके देखना चाहिए। ऐसा करने से आपको वर्ड्स ज्यादा अच्छे से याद होंगे और आप उनसे अपने सेंटेंसेस भी बनाना। इतनी चिंता मत करो अपने पेपर की। डोंट गेट सो अपटाइट अबाउट योर एग्जाम। डोंट गेट सो अपटाइट अबाउट योर एग्जाम। अपने एग्जाम के लिए इतने अपटाइट मत हो जाओ।
डोंट गेट सो अपटाइट। तो फ्रेंड्स, तो मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, मैं आपके लिए नई नई चीज़ें लाता रहता हूँ, रोज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ। मुझे भी मेरी फ़ी चाहिए आपसे। तो फ्रेंड्स, वो फ़ी है, आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। उसमें कोई पैसे नहीं लगते। सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और आगे बढ़ने तक का जुनून मेरा और स्ट्रांग हो जाता है। Thank you very much, my friends. Thank you very much for watching this video lesson. We're going to talk in the next one. Till then, take care of yourselves and bye.